کھڑے ہو کر سماعت کیا ہے. جب اتنا کہا ہے تو امام احمد رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور کہتے ہیں نادانو تمہیں پتا نہیں ہے میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. سید احمد کا جو بھی جس رسول کی حدیث پاک بیان کر رہے تھے وہ رسول میری نگاہوں کے سامنے موجود تھے. جب رسول میری نگاہوں کے سامنے ہے تو غلام کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سماعت کرے, ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جس صحابی سے روایت کر رہے تھے وہ ابو بکر بھی میرے نگاہوں کے سامنے تھے, وہ عمر بھی میری نگاہوں کے سامنے تھے, طلحہ بھی میری نگاہوں کے سامنے تھے, زبیر بھی میری نگاہوں کے سامنے تھے, ابو ہریرہ بھی میری نگاہوں کے سامنے تھے. جب مصطفیٰ کے صحابی اور مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہے تو غلام کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سماعت کرے, وہ ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو امام احمد رضا ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. تمہاری طرح ادھر بدر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی محفل ہے, مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے, صحابہ کی جلوہ گری ہے, پیغمبروں کی جلوہ گری ہے, رسولوں کی جلوہ گری ہے. لیکن اس محفل پاک میں تم آ کر بیٹھ گئے ہو, کبھی گور پھیلا رہے ہو, کبھی ہاتھ ٹیک رہے ہو, کبھی ادھر گھوم رہے ہو, کبھی ادھر گھوم رہے ہو. محفل پاک سجانے کا یہی مقصد نہیں ہے. حضرت بڑی پیاری بات کہہ کر آپ کو رخصت ہو گئے لیکن آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں کیا ہے. لیکن یاد رکھنا جو تم یہاں پر بیٹھے ہو رات کے 12 بجے یہ مت سمجھیے کہ ہم تنہا بیٹھے ہیں, مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں. ہماری نگاہ اس لائق نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے جلوہ جہارہ کو دیکھ سکے, لیکن مصطفیٰ ہمیں ضرور سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے یا نہیں ہے؟ بولو. تو ایسی ادب کے ساتھ بیٹھو گے یا نہیں؟ بتاؤ. ختم کرنے کے لیے کہوں تو میں بہت فاسٹ ہوئی کام ہے. پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. کیا ہے؟ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. لیکن یاد رکھنا آپ لوگ جانتے ہو تو جو سب سے بڑا قلمکار ہوتا ہے تو بولتے ہیں فلانے کے طریقے پہ چلوا تو تو کامیاب ہو جائے گا. فلانے کے زندگی کو آئیڈیل بنا لے گا تو تو فنکار ہو جائے گا. لیکن دنیا کا شہنشاہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ساری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے. سبحان اللہ. کر لیا جائے. اب مجھے سگنل مل گیا, میں اپنی بات کو یہیں سے سمیٹنا شروع کر دیتا ہوں. لیکن حضرت جبرائیل کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ بلبل سدرہ ہے, سید الملائکہ ہے, یعنی فرشتوں کے سردار ہے. ایک مرتبہ بارکہ یزدی میں حاضر ہوئے ہیں. میرے پیغمبر نے نگاہیں ترچھی کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا, کہا یہ تو حضرت جبرائیل ہے, بلبل سدرہ ہے, سید الملائکہ ہے, فرشتوں کے سردار ہے, لیکن انسانی شکل میں آئے ہیں. سبحان اللہ. ایک انسانی شکل و صورت میں آئے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا ہے, لیکن انسانی جسم کیسا ہے, انسانی لباس کیسا ہے, اس میں انسانی یہ جسم و جسمانیت کیسی ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا اے جبرائیل اللہ نے تمہیں نور سے پیدا کیا ہے, لیکن یہ انسانی شکل و صورت کیسی ہے, یہ انسانی لباس کیسا ہے, یہ انسانی شکل و صورت کیسی ہے؟ اپنی اصل حالت دکھا دو نا, جسے خدا کا محبوب دیکھ لے, جسے خدا کا رسول دیکھ لے. اب اتنا کہنا تھا. حضرت جبرائیل کرتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ادھر سے اصرار ہو رہا ہے, ادھر سے انکار ہو رہا ہے, ادھر سے اصرار ہو رہا ہے, ادھر سے انکار ہو رہا ہے. اصرار اور انکار کی باہما قسمیں حضرت جبرائیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیتے ہیں. اور کیا دیکھتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جب حضرت جبرائیل ہے اپنی نور والی صورت میں آ جاتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا, حضرت جبرائیل کے 600 پر ہے, ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ 70,000 برس کا فاصلہ تھا. جب حضرت جبرائیل نے اپنے 600 پروں کو بچھا دیا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا حضرت جبرائیل کے پروں میں چھپ جاتی ہے, پوری دنیا حضرت جبرائیل کے پروں میں چھپ جاتی ہے. اب حضرت جبرائیل ہے اپنی انسان والی صورت میں آ جاتے ہیں, انسان والے لبادہ میں آ جاتے ہیں, انسان والی صورت میں آ جاتے ہیں. اب ادھر سے اصرار کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو سید الملائکہ ہو, آپ تو تمام انبیاء کے سردار ہو, اللہ نے آپ کو بھی نور سے پیدا کیا ہے, آپ کو بھی نور سے پیدا کیا ہے, آپ تو وہ نوری ہو, آپ کے نور سے آسمان کو
पैदा किया है, आपके नूर से धरती को पैदा किया है, आपके नूर से चांद को चांदनी मिली है, आपके नूर से सितारों को जगमगाना मिला है, सूरज को रोशनी मिली है, कुल कायनात को जन्म दिया है, तो आपके नूर से पैदा किया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप भी तो इंसानी सूरत में हो ना, इंसानी जिस्मो जिस्मानियत में हो, अपनी असल हालत दिखा दो ना, जिससे खुदा का फरिश्ता देख ले, बुलबुल सिदरा देख ले, सैयदुल मलाइका देख ले, या रसूल अल्लाह दिखा दीजिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नीची निगाह की है, और नीची निगाह करने के बाद फरमाया, ए जिब्राइल, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, रब्बे कायनात ने मेरे चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, 70 पर्दे डाले हैं, अगर एक पर्दा भी उठा दूंगा तो पूरी दुनिया मेरे हुस्न से जलकर राख हो जाएगी। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तो मक्के की गलियों में चल, ताकि मेरे बंदों को चलने का शऊर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, लोगों से गुफ्तगू कर ले, ताकि मेरे बंदों को गुफ्तगू करने का शऊर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तू बैठकर खाना खा ले, ताकि मेरे बंदों को खाना खाने का शऊर मिल जाए। तू बैठकर पानी पी ले, ताकि मेरे बंदों को पानी पीने का शऊर मिल जाए। तू मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर ले, ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ने का शऊर मिल जाए। और ऐ मेरे महबूब, तू कुरान की तिलावत कर ले, ताकि मेरे बंदों को तिलावत करने का शऊर मिल जाए। और ऐ मेरे महबूब, तू हजरत खदीजा से निकाह इसलिए कर ले, ताकि मेरे बंदों को शादी करने का शऊर मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कभी शादी नहीं करते तो किसकी जिंदगी को आइडियल बनाते? बोलो। अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनाकर सुभान अल्लाह भेजा या नहीं? अगर नबी हजरत खदीजा से निकाह नहीं करते तो किसकी जिंदगी को आइडियल बनाते? मुझे बताओ, दुनिया के अंदर सबसे पहले निकाह किसने किया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। हम सबों के बाद बोलो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले निकाह किया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने निकाह किया है, ये नहीं फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत इब्राहिम ने निकाह किया है, ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। 1,24,000 कम 20 पैगंबरों ने निकाह किया है, लेकिन किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। जब अल्लाह ने अपने महबूब को इस दारे की जी पर भेज दिया है, जब 24 साल जिंदगी हुई है, तो उसी 24 साल जिंदगी में एक 40 साल बेबा हजरत खदीजा से निकाह करके ये ऐलान कर दिया कि काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन नकिबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया वो हम में से नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया वो हम में से नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है उसकी जन्नत की जमानत आमना का लाल लेता हाय हाय, सुभान अल्लाह। दादा है ना दूल्हा के, शेर अली नाम है उनका। हाँ, शेर अली दादा ये कल अपने गांव वालों को ऐलान कर सकते हैं, और उनको हक भी है कि गांव वालों, हम वो काम करने कल जा रहे हैं जिस काम को मेरे दादा ने भी किया है, और दादा ने भी किया है, खुद मैंने किया है, मेरे बेटे ने भी किया है, कल मेरे पोते का होने जा रहा है। इस सुन्नत को मैंने जिंदा किया है, और इस सुन्नत को जिंदे करने के बाद और नबी का कानून भी सुन लो कि जन्नत की जमानत किसी दुनियादार ने नहीं ली है, बल्कि अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे निकाह करना रिसालत। नबी की सुन्नत है। लेकिन ये बताओ, जैसा कि हजरत ने बताया अभी कि आज हम निकाह को, नबी फरमाते हैं कि निकाह को तुम इतना आम कर दो, इतना आम कर दो कि इंसान गुनाह का तसव्वुर ना करे। क्या
गुनाह का तसव्वुर ना करे। और आज हमने निकाह को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, गुनाह को आम कर दिया है। आप बोलिएगा कैसे? कहीं जहेज के नाम पर, कहीं डिमांड के नाम पर, कहीं किसी के नाम सुभान अल्लाह। पर, कोई फोर व्हीलर, कोई किसी के नाम पर हमने निकाह को दबा दिया है। ऐसा है या नहीं है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या मांगने की तमन्ना रख रहे हो तो मुझे बताओ। अगर मांगना है तो किसी गरीब बेटियों के बाप से मत मांगो। अगर मांगना है तो मदीने की ताजदार की बेटी खातूने जन्नत के बाप से मांग लो, ताकि तेरी जिंदगी भी सुधर जाए। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुमको मालूम है कि जहेज बिन मांगे मिल जाना ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। बोलो, सुभान अल्लाह। बिन मांगे मिल जाना ये किसकी सुन्नत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन जब हजरत फातिमा की जहेज, अभी में हजरत ने एक बयान, एक बात कही, बड़ी प्यारी कही कि फातिमी महर, लेकिन ये कहीं आया है चलो महर के तुम ठीक है कि तुम महर कितना बांध रहे हो, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन इस चीज़ की है कि जितना तुम उससे महर जितना जहेज मांगते हो तो कम से कम उससे ज़्यादा का डबल तो तुमको तो महर बांधना चाहिए है। अरे कम से कम उतना बांध दे कि जितने में टू व्हीलर उसने दिए उतना तो बंधवा लेता। मुझे बताओ, आज हम 1151 कितने 551 786 ऐसे करके महर बांधते हैं या नहीं? मुझे बताओ, कम से कम 10,000 रुपए बांधो। कितने? 10,000 रुपए। अरे जो बिटवा 10,000 रुपए 20 साल की उम्र में ना कमा कर अपने महर विदा रख सका तो वो जिंदगी में क्या उखाड़ लेगा? बोलो, क्या उखाड़ेगा वो? क्योंकि 10,000 बांधा किया करो इसलिए कि बाप भी अपनी औलाद को समझ ले कि मेरा बेटा इस लायक हो चुका है, दूसरे की बहन बेटी को पाल सकता है। और तमाम और ससुर भी इस बात को जान ले कि मेरा दामाद इस लायक है कि 10,000 दे सकता है तो मेरी बेटी को भी अच्छा जीवन दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को माशाअल्लाह। नहीं है? बोलो है? लेकिन जहेज हजरत फातिमा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखी है तो रिश्ते आना अल्लाह की तरफ से ही शुरू हो गए। समझ रहे या नहीं? हजरत उमर भी रिश्ता मांगने पहुंचे थे, हजरत उस्मान भी मांगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा जाओ अभी मेरी बेटी इस लायक नहीं है। इतने प्यार से जवाब दिया है, हे उमर जब वक्त आ जाएगा तो बाबू सबसे पहले तुम्हें कवर करेंगे। इसी तरीके से शंभू लटका कर चले गए तो रास्ते में हजरत अली से मुलाकात हो जाती है। कहा भैया तुम कैसे? उमर भाई तुम कैसे उदास हो? कहा रसूलुल्लाह की बेटी का हाथ मांगने के लिए गया था, लेकिन नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, यही कह दिया है कि वक्त आवेगा तो उमर तुम्हें खबर कर दूंगा। हो सकता है जाओ अली, तुम जाओ ना, हो सकता है तुम्हें दे दे। जाओ जल्दी से जाओ। आज हम किसी के द्वारे जाए के तोर बिटिया हमके नीक लागती हम जाब, तोर बिटिया से बिया कर बोलते ना है तो कितना एहकारत की निगाह से देखेंगे। ऐसा है या नहीं है? लेकिन जिसको संग साथी बनाओ तो बड़े प्रेम से बनाओ, उसके किरदार को, जैसे कि हजरत ने बताया 4 बजों पर शादी करना चाहिए। कितनी? क्योंकि उसके अंदर पाए जाए, और जो बाजारों में तुमको मिल जावे तो उसके अंदर बजे पाई जाएंगी। बताओ, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसा रिश्ता जन्म नहीं लिया है कि जो 3 मर्तबा कबूल करने के बाद जिंदगी भर का बंधन बन जावे। भाई भाई का रिश्ता टूट सकता है, चचा भतीजे का रिश्ता टूट सकता है, लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। लेकिन जब हजरत अली नबी के दयारे मोहब्बत में गए, हजरत अली रोने लगे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे पैगंबर ने कहा, अरे अली बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? जब इतना कहा है अली फूट फूट कर रो रहे हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अरे अली मैं समझ गया हूँ, मैं अली समझ गया हूँ, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी वक्त मेरे नबी ने फरमाया, अली ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला मेरी बेटी का है। अगर मेरी बेटी इजाजत दे देगी ये अली तेरे साथ ही। जब इतना कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को पुकारा, ए बेटी फातिमा, ए बेटी फातिमा। कहा अब्बा हुजूर मैं आटा सान नहीं हूँ, मेरे हाथ की रोटी आपको बहुत पसंद है ना?
तो नबी ने फरमाया, ये मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज मेरी पसंद नहीं चलेगी, आज तेरी पसंद चलेगी। लेकिन मुझे बताओ, तुम कितने नबी की सुन्नतों पर अमल करते नजर आ रहे हो? तुम बिटवा के लिए तो लड़की ढूंढने के लिए जाओ तो अपनी बिटवा से कहते, देख ये फोटो है, देख ये फलाने की बिटिया है, देख ये उसकी बिटिया है। लेकिन कभी अपनी बिटिया से पूछा? कभी अपनी बिटिया से पूछा है? मेरे पैगंबर ने कहा है, अली ये मेरा फैसला नहीं है, मेरी बेटी का फैसला है। जब इतना कहा है, नबी ने फातिमा को बुलाया है तो कहा है, फातिमा आज मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आज तुम्हारी मर्जी चलेगी। अब हजरत फातिमा है, आपने पौने करके हाथ को अच्छे से साफ किया या ना किया है, हाथों में आटा लगा हुआ है, दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में आई है और आने के बाद कहा, अरे अब्बू जान मैं हाजिर हूँ, क्या बात है, कौन सी मेरी मर्जी चलेगी? मेरे पैगंबर ने उंगली का इशारा किया, ऐ फातिमा दरवाजे पर अली आया है, आपका हाथ मांगने के लिए आया है। जब इतना कहा है, हजरत फातिमा फूट फूट कर रोने लगी है, ज़ारों का तारा आंसू बहा रही है। तो मेरे पैगंबर ने कहा, ऐ फातिमा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, रोने का सबब क्या है? तो इतना कहा है तो हजरत फातिमा कहती है, ऐ अब्बू हुजूर ये तो बात माए पूछा करती है, आज तुम पूछ रहे हो। जब इतना कहा है, नबी फूट फूट कर रोने लगे हैं, रोते रोते इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब तेरी माँ खदीजा इस दुनिया से रुखसत हुई थी तो उसने मुझसे वादा लिया था कि ये मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हो, इसे बाप का भी प्यार देना होगा और माँ का भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पैगंबर ने बेटी से पूछा, कहा अब्बू किसी का बाप किसी के लिए कभी बोला नहीं सकता, या नहीं ये बोलो? तो फिर बिटवा से तुम फैसला क्यों लेते हो? फलाने की बिटिया, कभी बिटिया से पूछा? पूछ लिया करो, ये नबी की सुन्नत समझ लिया करो। नबी की सुन्नत समझ कर अगर कोई भी काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां नजर आकर रोएंगी, आंसू नहीं बहाएंगी, बल्कि कहेंगी ये मेरे बाप का, ये मेरे बाप का करिश्मा है जो आज मैं सुख की जिंदगी काट रही हूँ। तुम अपनी बेटियों से कभी नहीं पूछते, लेकिन तुमसे मेरी यही अपील है, जब हजरत फातिमा ने इजाजत दी है, वक्त मुकर्ररा पर रिश्ता हो गया है। जब रिश्ता हुआ है, सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही टहलने की गर्ज से निकले, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हो जाती है तो इतने में हजरत अबू बकर कहते, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में कभी अबू बकर से कोई बात नहीं छुपाई है, लेकिन आज कैसे छुपा ली है? तुमने फातिमा का निकाह कर रिश्ता कर दिया है, लेकिन अबू बकर को पता नहीं है। मेरे पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तो आपको बताने के लिए ही जा रहा था, उससे पहले आपने ही पूछ लिया। अब दोनों लोग हैं, नबी के घर जा रहे हैं। जैसे ही घर पहुंचे हैं, कहा, या रसूल अल्लाह, रिश्ता फातिमा का हुआ है तो आपकी मर्जी से, और जितना जहेज दिया जाएगा वो अबू बकर की मर्जी से। जितना जहेज दिया जाएगा वो अबू बकर की मर्जी से। लेकिन कौन है चचा कहता है जितनी भतीजी का जहेज दिया है वो मैं अपनी मर्जी से दूंगा। कौन दादा कहता है कि मेरी पोती का ब्याह होने वाला है कि पूरा जहेज मैं दूंगा अपनी मर्जी से। किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन अबू बकर का अखलाक देखिए। कहा, जितना रिश्ता हुआ है रसूल अल्लाह आपकी मर्जी से, लेकिन जहेज जितना दिया जाएगा वो अबू बकर की मर्जी से दिया जाएगा। अबू बकर जितना जहेज फातिमा का होगा वो तन्हा अबू बकर देने के लिए तैयार है। जब इतना सुना है, नबी करीम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या बात कर रहे हो? अगर मैं अपनी बेटी को जहेज दे दूंगा तो मेरी कौम की गरीब बेटियों का हाल क्या होगा? कैसे मेरी कौम
हमारी बेटियों के दिल पर गुजरेगी, इसलिए मैं जहेज नहीं दूंगा। जब इतना कहा है, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के दरमियान नसीहत आमेज गुफ्तगू हो रही थी। इतने में पर्दे की आड़ से हजरत फातिमा ने आवाज को सुन लिया है, पलट कर आई है। कहा, कौन कहता है अबू जान कि फातिमा जहेज नहीं लेगी? आपकी बेटी जहेज लेगी, आपकी बेटी जहेज लेगी। और तुम्हारी बेटियों का हक है कि हमको टीवी चाहिए, तो भाई बोलती है या नहीं? बताओ, ऐसा है या नहीं है कि टीवी चाहिए? बोलती या नहीं? कि अगर नहीं दी है, जहेज में नहीं दी, तो कहती चौथी हुई उम्र दे दी। बोलती है या नहीं? लेकिन अरे बाप रे, वो तो जहन्नम का खुद ही गड़ा है, जहन्नम का वो खुद गड़ा है। मैं कहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर मसले मुस्कुरा कर हल हो जाए तो हमारी मेराज हो जाए, है या नहीं? हर बात सख्ती से नहीं काम आती है, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा। अब हजरत फातिमा कहती है, ये अब्बू जान, कौन कहता है आपकी बेटी जहेज नहीं लेगी? आपकी बेटी फातिमा जरूर जहेज लेगी। बोले तुम? बोले हाँ। बोले तुम? बोले हाँ। आपकी बेटी फातिमा बोल रही हूँ कि मैं जहेज लेने के लिए तैयार हूँ। जब इतना कहा है, नबी सिलेंडर हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा, अब्बू जान जहेज दोगे? जब इतना कहा है तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरी बेटी फातिमा, तुम्हें जहेज देने के लिए आपका बाप मोहम्मद मुस्तफा तैयार है, तैयार है। जब इतना कहा है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा घर के अंदर गई है, एक कागज का टुकड़ा लेकर आई है, और आने के बाद वो कागज का टुकड़ा है अपने बाबा के हाथ में दिया है, और हाथ में देने के बाद कहा, हे बाबा, इसको ले, इसको उसको थामने से पहले दिल पर हाथ रख लो कि फातिमा का जहेज दोगे या नहीं दोगे? फातिमा को जहेज दोगे या नहीं दोगे? कहा, बेटी मैंने बहुत सोच लिया है, बहुत समझ लिया है, देने के लिए तैयार हूँ। तो फातिमा ने जहेज में हमारी बेटियों की तरह टीवी नहीं मांगी थी, टू व्हीलर नहीं मांगी थी, दुनिया का जहेज नहीं मांगा था। तो हजरत फातिमा इल्तिजा करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे जहेज चाहिए तो दुनिया का जहेज नहीं चाहिए। आप ही की जुबान है, आप ही का फरमान है, आपकी शरीयत मुस्तफा का ये हुक्म है। जब खुदा की अदालत होगी, मैदान महशर बर्पा होगा, उस दिन आदम भी खड़े होंगे, नूह भी खड़े होंगे, शीश भी खड़े होंगे, दानियाल भी खड़े होंगे, 1,24,000 कम्बो 20 पैगंबर होंगे, बड़े बड़े रसूल होंगे, बड़े बड़े नबी होंगे। किसी रसूल और नबी को बोलने का हुक्म नहीं होगा। तो रब्बे कायनात उस वक्त आपको आपकी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआओं का हुक्म देगा। तो उस वक्त आमीन कहने के लिए सबसे पहले हजरत फातिमा को इजाजत मिल जाए। यही फातिमा का चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज हमारा जहेज क्या है? आज हमारा जहेज यही है। बस गुफ्तगू यही पर मैं खत्म करता हूँ। वक्त तो नहीं है, लेकिन बातें बहुत थी। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों, मेरी महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए अफज़ल है। नबी के मिशन पर चलते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। रब्बे कायनात से दुआ है, एक परवरदिगार आलम, कल जो अब्दे निकाह होने वाला है उसमें दिक्कतें